Good morning, student. Today, in this video, I'm teaching you social science for class 8, and this is your chapter first of your political life, and the chapter name is the Constitution of India. So, what are the following things we will cover in this chapter? Like rules and law, role and types of the Constitution, law and their importance, law and distant salt satyagraha, anti-liquor agitations, Constituent Assembly, drafting committee of Indian Constitution, key features, and fundamental rights, duties, and circularism. Okay. So, do you know what do you mean by the rule and law? Rule and law, which few people has made by for the more of a people. ठीक है, जिसको कुछ पीपल बनाते हैं और वो सबके लिए बनाता है. ठीक है. To rule and law, we can say the constitution. So for the functioning of any democratic country, rules and laws are always necessary. तो किसी भी democratic country के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस country में rule and regulations को follow कराएं. ठीक है. These rules and laws make life easier and functioning of democracy effective as well as smooth. तो अगर हम रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, इससे हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है और इफ़ेक्टिव तरीके से हम अपने कंट्री को चला सकते हैं, स्पेशली इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. सो इफ़ वी डू नॉट फॉलो दीज रूल्स और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विल बी थ्रेटन. अगर हम किसी कंट्री में रूल एंड सेफ्टी प्रोवाइड ना करें, अगर हम रूल एंड रेगुलेशंस ना बनाएं, तो पीपल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे खतरा आ सकता है. So in the same way, certain rules and regulations are must for the working of the state or a country. तो किसी भी country के लिए, किसी भी country को चलाने के लिए या state को चलाने के लिए, it is very much needed certain rules and regulations. So the set of rules and regulations which helps in the smooth functioning of the state is termed as constitution. तो यहाँ पे अगर हम रूल रेगुलेशंस की बात करें तो किसी भी कंट्री के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, रूल एंड रेगुलेशंस का होना ज़रूरी है. तो यही रूल एंड रेगुलेशंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन can be defined as the fundamental smooth living document according to which a country is governed. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फंडामेंटल स्मूथ लिविंग डॉक्यूमेंट है जो कि किसी कंट्री को गवर्न करने में, चलाने में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है. ठीक है. नाउ रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है. A constitution is a set of written rules and laws according to which a state is governed. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट है जिसमें रूल एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, रिटन वे में हैं किसी स्टेट को चलाने के लिए. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच the governance of that country is conducted with a view to maintain law and order. Okay, so these are the constitution which help like a guidelines, and they work as a principle on the basis of which the government conduct rule and regulations or maintain law and order in the country. ठीक है. कंट्री में रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से वो सरकार को चलाने में ईजीनेस होती है. नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. So the constitution is of two types, written document and unwritten document. So first of all, our country has a written constitution which came into force on 26th of January 1950. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में है और ये फोर्स में आया 26th of January 1950 में. ठीक है. The constitution is very important for a state due to the following reason. तो क्या कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. The government of a country is formed and function on the guidelines laid down in the constitution. तो हमारी जो गवर्नमेंट है कंट्री को जो रन करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडलाइंस को फॉलो करती है और कंट्री को रन करने में उसके लिए ये फंक्शन ईजी हो जाता है. सेकेंड, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री. हम अपनी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छी तरह समझ सकते हैं इफ़ यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन.
एंड इट डेलिमिट द स्कोप एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए एक लिमिट तैयार करता है. ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट बियॉन्ड द लिमिट काम करती है तो पब्लिक या सिटीजन्स के वो एक हम कह सकते हैं कि उनका नुकसान हो सकता है. बट वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, and through the constitution government is taking advices and guidelines, and according to that they are working. So it ensure that the citizen of a country enjoy the fundamental rights. और constitution हमें help करता है, whatever the constitution rights we have, whatever the fundamental rights we have, so constitution has provided us, we all are enjoying without any interference of anybody else. Okay, as one of the famous scholar जेलिंग डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक बहुत बड़े स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया है. अ स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी अ स्टेट बट अ रेगिम ऑफ एनार्की. ठीक है, अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या किसी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो अपने आप में लॉलेसनेस कहलाएगा. ठीक है, जहाँ पे कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है और वहाँ के काम स्मूथली कंडक्ट नहीं हो पाएंगे. ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई. द वर्ड लॉ इज ड्राइव फ्रॉम द टेक्टोनिक वर्ड लेग. ठीक है, ये वर्ड लेग से निकला है एंड विच स्टैंड्स फॉर समथिंग फिक्स्ड, जिसका मतलब होता है कि कुछ फिक्स्ड होना. ठीक है, जैसे रूल एंड रेगुलेशन फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई भी बंदा नहीं जा सकता. ओके, सो लॉज हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी. वी नीड लॉज. लॉज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है. जैसे कि हमें लॉ की क्यों ज़रूरत पड़ती है? एज ए रेगुलेट द सिविक्स लाइफ ऑफ द सोसाइटी. हमारी जो सोसाइटी है उसको सिविलाइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ता है या लॉ का ज़रूरत पड़ता है. फॉर गुड गवर्नेंस, ताकि हम जो हमारी गवर्नमेंट है वो अच्छे से हमें गवर्न कर सके. ठीक है, एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी लॉज बनाए जाते हैं. जो उनको फॉलो नहीं करेगा दैट पर्टिकुलर पर्सन बी पेनलाइज बाय द गवर्नमेंट. एंड टू क्रैप द सोशल इवल्स प्रेवलिंग इन द सोसाइटी. और सोसाइटी में अगर कोई बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी रूल एंड रेगुलेशंस होना ज़रूरी है. सो द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच you follow while walking on the road, discuss them with your family members and discuss that whether you are following all those rule and regulations or not. Okay, proceed this topic. I'll be in next video. Okay, so thank you and have a nice day. Better.